कि अपने ही इलाके में इतने दिनों से छुपा हुआ था। 55 সুতরাং এই ভুলটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত, কোনো রকম উদ্দেশ্য ছিল না এবং সমস্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে এসপি সেটা রিপোর্ট দেবেন। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে এসপি একটি বিভাগীয় ব্যাখ্যাও চেয়েছেন। কাজ করতে আপনাদেরও ভুল হতে পারে, আমাদেরও ভুল হতে পারে। দিস ওয়াজ আ মিস্টেক, বাট কমপ্লিটলি আনইনটেনশনাল, ইনঅ্যাডভার্টেন্ট মিস্টেক। এইটা দ্বিতীয় বিষয় আমার বলার ছিল। তৃতীয় আরেকটা বলবো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সন্দেশখালীতে নানা রকম 144 জারি আছে, অনেকে আসছেন জনপ্রতিনিধিরা, কিন্তু তাদের মধ্যে আগেও এটা বলেছি, আরও একবার বলতে চাই যে জনপ্রতিনিধিদের কেউ কেউ পুলিশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক, উস্কানিমূলক, প্ররোচনামূলক মন্তব্য করেছেন আপনারা জানেন, এবং এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যাতে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগে এবং যাতে একটা ভেদাভেদের বাতাবরণ তৈরি হয়। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কাজটা তো নিন্দনীয় বটেই, কিন্তু আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমরা এটুকুই আশা করব যে জনপ্রতিনিধিদের একাংশ এমন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবেন ভবিষ্যতে, যাতে মানুষে মানুষে ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে কোনো ধরনের বিভেদ, জাতিগত, ধার্মিক কোনো ধরনের কোনো বিভেদ তৈরি নয়। এইটা আমরা আশা রাখব। কোয়েশ্চেন্স প্লিজ। একটা কোয়েশ্চেন, কি সেকশনে শেখ শাহজাহানের এগেইনস্টে কেস হয়েছে, আর ও যে এই মাঝে অ্যাবসকন্ড করেছিল, আপনারা বলছেন মিনাখা থানা থেকে অ্যারেস্ট করেছেন এরিয়া থেকে, এখানে ও কার বাড়িতে ছিল, কিভাবে ছিল, স্টেটের বাইরে কোথাও গিয়েছিল কিনা, কার বাড়িতে ছিল, কিভাবে ছিল, কোথা থেকে অ্যারেস্ট, এটা তদন্তের বিচার্য বিষয়। আপনি জানেন, এটা আমরা এক্ষুনি রিভিল করব না। আমরা কোর্টকে জানিয়েছি। সেকশন তো 147, 148, 149 অনেকগুলো কেস হয়েছে, আপনারা জানেন। সেই কেসগুলোর রেফারেন্সটা আমরা দিয়ে দেবো, সেটা আপনারা কোর্ট থেকে পেয়ে যাবেন। হিন্দি আমি তো আইনি বাধার কথাই বললাম। আপনি হয়তো খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাটা শোনেননি। আমি আইনি বাধার কথা খুব স্পষ্টভাবে বলেছি। সকলের কাছে ফিড আছে, আপনি দেখে নেবেন। আমার প্রশ্নের উত্তর, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি খুব সবিস্তারে দিয়েছি এবং সেটা সবার এতে লিপিবদ্ধ আছে। কাইন্ডলি দেখে নেবেন, এটা আর রিপিট করব না। আমরা কোর্টে সেটা জানাবো। কোর্টে আমরা কি বলেছি সেটা আপনাদের বলবো। Sections will find from court, but Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Minakha PS area. We have forwarded Sheikh Shahjahan to the Bashirhat court. He'll be placed before the magistrate. We'll ask for police remand and let's see how it goes. Thank you. Sir, added any 354 case added? Not in this case. In this case, the complaint did not pertain to 354 at all. Any sexual assault case against Shahjahan, sir, till now? There have been many cases. I don't remember. और आइए सीधे एक बार फिर रुक करते हैं मेरी सहयोगी आशिका का। आशिका, सुप्रीतम सरकार है, एडीजी हैं, साफ वो कह रहे हैं 2-3 साल पुराने मामले हैं, शिकायत मिली थी जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है और प्राइम एक्यूज्ड है। देर रात गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड मांगेंगे, ये उन्होंने कहा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल यही कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कई विरोधी दल के नेता हैं जिनको हमने रोका भी ताकि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। साथ ही साथ जो शुभेंदु अधिकारी पर बिना नाम लिए हुए हमला करते हुए कहा कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने पुलिस अधिकारियों के ऊपर कटाक्ष किया, उनके धर्म को लेकर के भी बात कही है। सुप्रीतम सरकार ने यह बताया है कि 5 जनवरी की जो घटना थी ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमले की, उस मामले में गिरफ्तार किया है शेख शाहजहां को। साथ ही साथ दूसरे मामलों की भी शिकायत उनको मिली है। कुछ पुराने मामले हैं, 2 से 3 साल पुराने, और जो पुराने मामले हैं ना पंकज, उसको लेकर के कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है। पुलिस से ये सवाल पूछ चुकी है कि पहले अगर शिकायत मिली, पुलिस ने चार्जशीट तक जो है उन केसेस में दायर कर दी, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आशिका, साथ ही साथ 5 जनवरी का बाकायदा जिक्र किया, जब वो ईडी की टीम गई थी वहां पर उनके ऊपर जो हमला हुआ, 1000 जो समर्थक थे शाहजहां शेख के, उसका भी बाकायदा जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
पंकज, आपको ये भी याद दिला दूं कि 5 जनवरी की जो घटना थी ना, उसे लेकर के पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज किए, जिनमें से एक एफआईआर ईडी के खिलाफ भी है। तो फिलहाल जो 5 जनवरी की घटना थी, जहां ईडी के टीम के ऊपर हमला हुआ था, ऐसा हमला, खूनी हमला, 3 ईडी के अधिकारी, उनका सर फूट गया था, कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा था, जान बचा करके किसी तरह से उस इलाके से भाग करके निकले थे, जबकि केंद्रीय सुरक्षा बल को वहां पर लेकर के गए थे। उस घटना का जिक्र जरूर किया है, साथ ही साथ उसी दिन की जो घटना है, लोकल लोगों की शिकायत पर ईडी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी, जिसे लेकर के कोर्ट में मामला पहुंचा था। जब एक एसआईटी के गठन की बात हुई थी, उस एसआईटी के गठन पर रोक लगाई थी कोर्ट ने, जिसे पुलिस बार बार ये कहती रही कि कोर्ट ने हमारी कार्रवाई पर रोक लगाई है, जिसे लेकर के एक मतभेद रहा है, जिसे साफ कर दिया कोर्ट ने, जिसके बाद टीएमसी का दावा 7 दिन में गिरफ्तार होगा शाहजहां शेख, और 7 दिन बीते भी नहीं, सिर्फ 3 दिन ही बीते थे और शाहजहां शेख की आज गिरफ्तारी हो गई है। पंकज, बिल्कुल। और इस बीच बड़ी खबर आपको एक और बता दें, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज एक बार फिर से संदेश खाली जाने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर संदेश खाली जाने की इजाजत मांगी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को सशर्त यानी शर्तों के साथ संदेश खाली जाने की अनुमति दी है। आशिका एक बार फिर से जा रहे हैं, हालांकि शुभेंदु अधिकारी का जिक्र किया यहाँ पे एडीजी ने भी, और साथ ही साथ अब दोबारा जा रहे हैं, लेकिन शर्तें लगाई हैं कोर्ट ने इस बार। देखिए, बिल्कुल शर्तें लगाई है कोर्ट ने। ये कहा है कि साथ में समर्थक लेकर के नहीं जा सकते, कार्यकर्ताओं को लेकर के नहीं जा सकते, कोई भी भाषण वहां पर भड़काऊ नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर आज जब जाएंगे ना, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ये लड़ाई लंबी लड़ी है, साथ ही साथ सुकांतो मजूमदार भाजपा के राज्य अध्यक्ष हैं, वहां पर गए हैं, पुलिस एसपी का जो ऑफिस है उसका घेराव किया है, उनको चोट भी लग गई थी, अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई थी। तो ये दोनों ही नेता हैं जिन्होंने संदेश खाली की लड़ाई लड़ी, और आज संदेश खाली की जो महिलाएं हैं उनका दर्द देखा है, उनके आंसू खुद जाकर देखे हैं, उनसे आपने बातचीत की है, आज कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, उनकी आंखों में आज खुशी जरूर नजर आएगी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है शाहजहां शेख की। निश्चित तौर पर पंकज, इंतजार सिर्फ और सिर्फ शेख शाहजहां की गिरफ्तारी का था। ये महिलाएं लगातार ये कह रही थी कि आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक शेख शाहजहां गिरफ्तार नहीं होता है, चाहे फिर उत्तम सरदार और शिबू आजा गिरफ्तार क्यों ना हो गए हों, लेकिन शेख शाहजहां की गिरफ्तारी का ही इंतजार था। जाहिर है कि संदेश खाली की महिलाएं जो हैं वो जश्न मनाएंगी, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो महिलाओं के आरोप थे बहुत गंभीर थे, और टीवी के कैमरों पर आकर के उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई थी। पंकज, बिल्कुल। तो आज क्या क्या हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, पूर्व जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने की इजाजत कलकत्ता हाईकोर्ट से मिल गई है। जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य 1 मार्च यानी कल संदेश खाली के लिए जाने वाले हैं, उन इलाकों में जा सकेंगे जहां धारा 144 भी लागू है। आशिका, अब जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम है वो भी जाएगी, कल उनके जाने का प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, उनको रोक दिया गया था। वो तस्वीर आपको याद दिला दूं संडे की, जब वो टीम निकल रही थी कोलकाता के एक निजी होटल से, वहां पे सबसे पहले उनको रोक दिया गया था। जब 4 सदस्य वहां से निकलकर किसी तरह आगे बढ़ रहे थे संदेश खाली की तरफ, तो जैसे ही हाईवे पर पहुंचे, बोजेराट इलाका है, वहीं पर पुलिस ने रोक दिया था। वहीं पर उसके एक दिन पहले बीजेपी का महिला दल जा रहा था, लॉकेट चैटर्जी को भी रोक दिया गया था। फैक्ट फाइंडिंग टीम बीजेपी की, उसको भी रोक दिया गया था। बिल्कुल। तो टीएमसी नेता शाहजहां